Rathore is an internationally acclaimed speaker, one of India's top NLP experts, award-winning marketing influencer, Amazon #1 best-selling author, a deep spiritual enthusiast who is working to connect science and spirituality, and he is an advanced yoga practitioner as well. His journey from a villager to a multimillionaire coach and entrepreneur has been outstanding, to say the least. Having confronted difficulties and challenges in his life heads on right from his childhood days, YSR has come a long way. He is now the founder of three multi-million startups: Mission Positive World Private Limited, Uniguru.com, and Lead Monk Digital Private Limited. He has been appreciated by the Prime Minister of India for his startup Uniguru.com, a tech platform that acts as one's personal life coach and helps people chart their way of life. He has inspired more than 2 million people through his various programs, videos, and workshops. He established a brand for himself and is now a well-known name among stalwarts of every industry, be it Bollywood, hospitality industry, politics, entertainment industry, food or fashion industry, and even cricket. Yogendra Singh Rathore has made his presence known everywhere. He has rubbed shoulders with A-listers across industries. He has shared the stage and rubbed shoulders with big celebrities like Karan Johar, Bollywood producer, Mahesh Bhatt, Bollywood director and producer, Sudeep Nagarkar, best-selling novelist of India, Sir Ian Botham, cricket legend, Ayushmann Khurrana, actor, Bipasha Basu, actress, Poonam Mahajan, MP Mumbai, Parthiv Patel, cricketer. He was also the brand ambassador of the Gujarat Knowledge Series campaigns initiated by Divya Bhaskar. His two bestseller books awaken the great potential of memory and willpower. Secrets of the Limitless Mind has been loved by the readers so much that they are about to be translated into Gujarati and Hindi for wider audience reach. He established himself as a serious professional at the young age of 27 when his short biography was published in one of the leading international e-magazines of India, IU E-Mag, Inspiration Unlimited e-magazine. Along with great boxer Mary Kom, IU E-Mag has readers in more than 95 countries. He received his first Social Contribution Award at the age of 29 in IIM Ahmedabad by Rakesh Om Prakash Mehra, Bollywood director. He received the second Yuva Gratitude Award for social contribution by the legend of cricket, Sir Ian Botham. In past, this award has been given to heads of JP Morgan, Asian Paints, Microsoft, Current, Coca-Cola, etc. He received an award for Top Influencer 2019 at India Excellence Award. He has appeared on Z Business and MCN News and Josh Talks as well. He has been interviewed by Times of India, Hindustan Times, India Today, International Business Times, Singapore, DNA, Navbharat Times, Divya Bhaskar, Dainik Sakal, Rajasthan Patrika, Midday, Times Bulletin, etc. He is on mission to change 100 million lives. So, ladies and gentlemen, raise your energy, raise your claps, raise your smile, and please welcome Mr. Yogendra Singh Rathore. Hello, everybody. Good evening. Are you guys able to see me, hear me properly? Please let me know in the chat box अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो. Yes. Good to see you. Same here. कितने लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग सुन चुके हैं? टाइप यस अगर पहले सुन चुके हैं तो, एंड टाइप फर्स्ट अगर पहली बार आए हैं तो. फर्स्ट यस 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 फर्स्ट यस 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 फर्स्ट टाइम यस यस. चलिए, तो मतलब बिक्स है. गुड. तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी नो योर सिटीज. कौन से शहर से आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं? लेट मी नो योर सिटीज. शिमला, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, दीव,
डीसा गुजरात, क्या बात है। पटना, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड ये 2 दिन बहुत ही डीपर लेवल पे हम पैसे की न्यूरो साइंस और उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, और आई एम श्योर दैट यू विल गेट सम अमेजिंग ब्रेक थ्रू इन दीज 2 days। कुछ हाउस रूल्स देख लेते हैं कि नियम है, कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स में चलेगी प्रोग्राम, तो प्लीज चैट बॉक्स में बार बार ना लिखिएगा कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस उसको नोट डाउन करके रखें, एंड में हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे आपके, ताकि इन बिटवीन जो फ्लो है वो खराब ना हो। और जितना हो सके कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं तो अपना कैमरा ऑन करके बैठे, सो दैट आई कैन सी एंड आई कैन गेट फीडबैक दैट हाउ यू आर एब्जॉर्बिंग द नॉलेज। एक नोटबुक पेन अपने साथ में रखें, पानी का गिलास रखें साथ में, ताकि थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को आप हाइड्रेट करते रहें। तो रेडी हैं सभी? जस्ट टाइप रेडी एंड एक्साइटेड इफ यू आर रेडी फॉर डे 1। रेडी एवरीबॉडी? तो चलिए, लेट मी सेट द एजेंडा फॉर डे 1 कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा। आज हम सबसे फर्स्ट फेज में बात करेंगे 7 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, कि जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो उसकी 7 स्टेजेस होती हैं, वो क्या होती हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सेकेंड, आई विल टेल यू अबाउट द मनी माइंडसेट, कि जो लोग अमीर होते हैं, जो मिलेनियर्स होते हैं, मल्टी मिलेनियर्स होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, और जो लोग पुअर्टी में रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास में रह जाते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। आज हम पैसे को लेकर के टॉप 6 ब्लॉकेजेस की बात करेंगे, ऐसे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस जो आपके अंदर आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आ जाते हैं, और वो ब्लॉकेजेस आज भी आपको पैसे से दूर रखते हैं। और चौथा, आज हम बात करेंगे 14 नेगेटिव बिलीफ्स अबाउट मनी, ऐसे वो बिलीफ जो इंसान को पैसा कमाने से रोकते हैं और एक ब्लॉकेज उसकी जिंदगी में क्रिएट करते हैं। तो मैं पहले पे आऊं उससे पहले बता दूं कि ये वर्कशॉप किसके लिए है। इफ यूर स्ट्रगलिंग विद मनी एंड फाइनेंस, इफ यूर अ बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर, इफ यूर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, इफ वांट टू बिल्ड वेल्थ एंड अबंडेंस, इफ यूर इन डेट एंड वांट टू कम आउट ऑफ इट, एंड इफ यू वांट टू मास्टर मनी साइकोलॉजी, दिस इज फॉर यू। Who is this not for? If you're looking for some quick fix, अगर कोई शॉर्टकट ढूंढते हुए आए हो, तो मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ना मेरे पास में कोई अमीर बनने की स्कीम है। तो अगर स्कीम ढूंढ रहे हो, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है, सो प्लीज डोंट अटेंड इट। ना ही ये वेबिनार कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ये प्योर मनी साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड और पैसे के साथ में क्या रिलेशनशिप है उस पे है ये। तो अगर आप कोई क्विक फिक्स या शॉर्टकट ऐसा कुछ ढूंढने आए हो, तो डोंट अटेंड दिस वेबिनार। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता। If you're not committed and dead serious about your personal professional goal, this is not for you. If you're not willing to invest in your attitude, skill and knowledge, this is not for you. And if you're lazy and not open to coaching, then please don't waste your time and energy here, because ये open। देखिए, आप बचपन से लेकर अभी तक पैसे के बारे में बहुत कुछ जानते हुए आए हैं, बहुत कुछ आपने जान रखा है ऑलरेडी। आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पैसे को लेके, आपके बिलीफ, आपकी फिलोसफी, आपकी स्टोरीज, आपके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, और वही जो नैरेटिव आपके सबकॉन्शियस में चल रहे हैं, यही नैरेटिव्स और यही प्रोग्राम्स आपके मनी फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई आकर के नया कोई रेडिकल आइडिया आपके सामने रखता है, कोई नया पर्सपेक्टिव रखता है, तो हम बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, क्लोज माइंडेड नहीं हुए, क्योंकि मैं यहाँ स्ट्रेट एंड मेनी टाइम बिल्कुल स्ट्रेट आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं और जल्दी से ऑफेंड हो जाते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप इन 4 लोगों में से नहीं है, और आप एक ओपन माइंड के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फेज ऑफ टुडेज, लेट मी नो दैट व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद द फाइनेंशियल्स। क्या क्या चीज आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली? क्या कोई डेट का इशू है, या फिर ऐसा कुछ है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर कमा नहीं पा रहे हैं, या फिर जिस स्पीड में आना चाहिए उस स्पीड में नहीं आ रहा है? what you're struggling with, let me know in the chat box what is your exact struggle with money। पैसे के साथ आपका क्या स्ट्रगल अभी चल रहा है? अर्न नहीं कर पा रहे हैं, डेट के इश्यूज हैं, स्पीड से, जिस स्पीड से स्केल होना चाहिए या आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि पैसे के साथ देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: मेकिंग मनी, मैनेजिंग मनी एंड मल्टीप्लाइंग मनी। Few people are very poor in making money, few people are poor in managing money, and few people are poor in multiplying it.
तो आपकी जनरली फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो बेसिकली इन तीन में से किसी एक एरिया में रहती हैं। आपका मेकिंग लेवल पे इशू है। चलिए मुझे बताएं कितने लोगों का मेकिंग लेवल पे इशू है। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव इशू एट द लेवल ऑफ मेकिंग। गुड। बिजनेस स्केल नहीं हो रहा है, एक पॉइंट पे आके सीलिंग हिट हो जाती है, एक इनकम पे आके सीलिंग हिट हो जाती है, नाउ इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। कितने लोगों का मैनेजिंग में प्रॉब्लम है। मैनेजिंग का प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा आता नहीं है, पैसा आता है, लेकिन जैसे ही आता है समहाउ आप उसे खर्चा कर देते हैं या और कोई दूसरा खर्चा आ जाता है और समहाउ निकल जाता है, पैसा टिक नहीं रहा है हाथ के अंदर। मैनेज में प्रॉब्लम आ रही है। जब मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है तो उधार बढ़ने लगते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ने लगते हैं, डेट आने लगता है। तो काफी सारे लोग हैं जिनको सेकंड लेवल पे प्रॉब्लम है, मैनेजिंग के अंदर दिक्कत आती है। कितने लोगों को मल्टीप्लाइंग में दिक्कत आ रही है, दैट यू आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इट, राइट। एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और उस इनकम में से बस छोटा मोटा कोई एफडी करा लिया है, लेकिन जो एक सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिलने चाहिए, जो मल्टीप्लाइंग होनी चाहिए, उसके वो नहीं हो पा रही है, यानी स्केल नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं। मैंने ये तीन ही एरिया में प्रॉब्लम देखी। और कोई है जिसको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है? कोई नया प्रॉब्लम हो, क्या पता जो इन तीन के भी बाहर हो। लिख दें जरा चैट बॉक्स में क्या है। स्पीड इज मल्टीप्लाइंग, स्पीड इज मल्टीप्लाइंग। चीटेड बाय फैमिली इज मैनेजमेंट ओनली। इट विल कम अंडर मैनेजमेंट कि आप किसी को उधार दे देते हैं, वो आपका उधार चुकाता नहीं है, फिर आप किसी को उधार दे देते हैं, फिर वो चुकाता नहीं है, ना नहीं बोली जाती है आपसे, आप चाहते तो हैं कि ना बोलें लेकिन ना नहीं बोल पाते आप, राइट। सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, गलत डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। Addicted to liability is also a part of managing. लक, प्रदीप जी, लक जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब आपको प्रोसेस नहीं पता होता तभी आप लक पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट लक। और बात यह है कि देखिए अगर लक है तो भी लक आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसी किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहने का लाइफ में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Anything that you cannot measure, you cannot manage. Okay, so luck is not a measurable entity, so you should not bring luck into your success factor. Okay, so जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको अपनी इक्वेशन से हमेशा बाहर रखें। माइंडसेट तो अब देखें, तो चलिए फटाफट से अब मैं टॉपिक पे आ जाता हूं। मुझे जो जानना था आप लोगों के बारे में वो मुझे आइडिया लगा और आई एम श्योर दैट ये 2 दिन आपके लिए बड़े ही मजेदार रहेंगे। तो पहले तो स्टेजेस समझिए कि आप फाइनेंशियली जब ग्रो करते हैं तो किन स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। फर्स्ट स्टेज है डिपेंडेंट। पहली स्टेज होती है डिपेंडेंट। हम सभी डिपेंडेंट स्टेज से शुरू करते हैं। ये वो स्टेज है जिस स्टेज पे आप अपने खर्चों के लिए किसी और पे निर्भर करते हैं। हम सभी डिपेंडेंट ही शुरू हुए थे। हम अपने माता पिता पे जब पैदा हुए तो माँ बाप पे डिपेंडेंट थे अपने सभी खर्चों के लिए। सो जब आपका सर्वाइवल, आपका रोटी कपड़ा मकान किसी और पे निर्भर करता है तो वो स्टेज कहलाती है डिपेंडेंट स्टेज। तो ज्यादातर आप बचपन में डिपेंडेंट स्टेज में रहते हैं और कई बार आप बुढ़ापे में भी डिपेंडेंट स्टेज में आ जाते हैं जब आप अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये डिपेंडेंट कई बार हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप कंप्लीटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। तो इसमें एक पर्टिकुलर एज नहीं है, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर आपका सर्वाइवल हर वक्त किसी और पे डिपेंड करता है तो देन यू विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट। इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप ऑलरेडी अपना सर्वाइवल भी किसी और पे कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि एवरी पर्सन ऑन दिस प्लेनेट दे ऑल स्टार्ट विद द डिपेंडेंट स्टेज। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं दैट वी ऑल आर इक्वल इन सीड बट वी आर डिफरेंट इन फ्रूट। हम सीड लेवल पे सब सेम होते हैं लेकिन फ्रूट लेवल पे सब अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे हम सर्कमस्टेंसेस से गुजरते हैं, जैसे जैसे लाइफ सिचुएशन से गुजरते हैं, उनमें जो चॉइसेस लेते हैं, जो कंडीशनिंग, जो प्रोग्रामिंग होती है, वो सब हमारे लाइफ रिजल्ट्स को चेंज करती रहती है। आगे देखें जरा, सेकंड स्टेज आ जाएगी आपकी, वो है सॉल्वेंट स्टेज। सॉल्वेंट स्टेज वो है दोस्तों जिस स्टेज में आपके इनकम और एक्सपेंस जो है वो बिल्कुल कट टू कट चल रहे हैं। आप समझे कि बिल्कुल कट टू कट है। ये स्टेज बड़ी अनस्टेबल स्टेज होती है क्योंकि इस स्टेज में अगर आपके परिवार में 4-5 शादियां भी आ गई एक महीने में और उन शादियों में आपको 100 रुपए के लिफाफे भी देने हैं तो भी आपका बजट बिगड़ जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन होती है।
तो सॉल्वेंट स्टेज में लेकिन आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। सॉल्वेंट स्टेज में आपने समहाउ अपनी इनकम के अराउंड अपने खर्चों को कंट्रोल कर लिया है और समहाउ आपकी जितनी इनकम आ रही है उतना ही आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अनस्टेबल आप फील करते हैं और कट टू कट आपकी जिंदगी इस स्टेज में चल रही होती है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की कोई यहाँ पे बात ही नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम और एक्सपेंस ऑलरेडी बिल्कुल कट टू कट है। सो द सेकंड स्टेज आएगी आपकी, वो रहेगी सॉल्वेंट स्टेज। अब कुछ लोग हैं जो इस स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं, वो है थर्ड स्टेज वाले। थर्ड स्टेज होती है स्टेबल स्टेज। ये वो स्टेज है जिस स्टेज में आपकी इनकम हल्की सी ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से। तो अगर आपके एक्सपेंसेस यहाँ है तो इनकम हल्की सी ऊपर है, इस वजह से आप छोटी मोटी सेविंग, इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा नहीं कर सकते आप, मगर स्मॉल सेविंग्स आपकी शुरू हो जाती हैं। तो स्टेबल स्टेज वो है जिसमें आपकी इनकम हल्की सी ज्यादा है एक्सपेंसेस से, इस वजह से आप थोड़े छोटे मोटे जो पीपीएफ हो गए, एफडी हो गई, 2000, 5000, 8000 की एसआईपीज हो गई, 2-3 महीने की सेविंग भी आपके पास में रहती है कि अगर नौकरी से 3 महीना सैलरी भी ना आए तो आपका घर चल सकता है। तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आप फाइनेंशियली इस स्टेज में महसूस करने लगते हैं। इस स्टेज में अगर आपने कोई छोटा मोटा घर का लोन या कुछ लिया हुआ है तो आप उसकी ईएमआई दे पा रहे हैं और छोटा मोटा सेविंग भी आप कर पा रहे हैं, तो ये स्टेज रहती है स्टेबल स्टेज। फोर्थ स्टेज आती है सिक्योरिटी। ये वो स्टेज है दोस्तों, इस स्टेज में आपके जीवन में चीजें थोड़ी फाइनेंशियली बढ़िया होने लगती हैं। ये वो स्टेज है जिस स्टेज में अब आपने जो सेविंग करी थी उनसे जो रिटर्न, जो इन्वेस्ट करे थे छोटे मोटे, उनके रिटर्न भी अच्छे से आने लगे हैं और अब आपको पैसिव इनकम का मजा, पैसिव इनकम का जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है, वो स्वाद आपको मिलने लग जाता है सिक्योरिटी वाली स्टेज के अंदर। अभी भी कुछ आपको कोई फाइनेंशियली बहुत कुछ नहीं हो गया है आपके साथ में, लेकिन हल्का सा टेस्ट आपको मिलने लगता है। यहाँ पे हो सकता है आपने छोटा मोटा किसी को ब्याज पे पैसा दे के रखा था, या फिर आपने छोटा मोटा कहीं आपकी रिटर्न्स पकने लगे हैं, पैसिव इनकम्स आपकी पकने लगी हैं, तो आपको यहाँ पे हल्का सा एक पैसिव इनकम का टेस्ट आने लगता है और अपार्ट फ्रॉम योर मेन इनकम एक और इनकम का जुगाड़ यहाँ पे लगना शुरू हो जाता है। फोर्थ स्टेज होती है सिक्योरिटी स्टेज। दोस्तों इस दुनिया का 80% पॉपुलेशन इन पहली 4 स्टेजेस में रहता है। 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज इन द फर्स्ट 4 स्टेजेस। ओके, तो जितना भी पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये सब के सब जो होते हैं, ये पूरा का पूरा तबका पहली 4 स्टेजेस के अंदर आता है। 80% पॉपुलेशन इज इन द फर्स्ट 4 स्टेजेस। अभी हम इसी क्लास में सर्वे करेंगे थोड़ी देर में, तो आपको पता लग जाएगा that 80% people are basically in the first 4 stages. यहाँ तक सभी सेम पेज पे हैं, तो टाइप सेम पेज so that we can move to the next stages। अगली 3 खूबसूरत स्टेजेस जहाँ पे जाने का ख्वाब सभी देखते हैं और हम डिजर्व भी करते हैं और हम चाहे तो जा भी सकते हैं। Please type same page in the chat box if you are on same page with me. Good. So let's move to the next stages. अगली देखें जो स्टेज आएगी, 5th स्टेज है इंडिपेंडेंस। अब देखिए ये वो स्टेज है जिस स्टेज में आपकी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम तो है ही है, लेकिन अब आपकी पैसिव इनकम भी इतनी हो चुकी है कि आपका जो घर खर्च है वो आपकी पैसिव इनकम से ही चल जाता है। मे भी कोई डिविडेंड्स आ रहे हैं, कोई वैल्यूएशन बढ़ रही है, कोई रेंट आ रहा है, कोई ब्याज आ रहा है, किसी ना किसी तरीके से कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपका है और अब आप अपनी जो मेन इनकम है उसी पे आपका खर्चा डिपेंड नहीं करता। अब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और आपकी पैसिव इनकम ही आपके घर खर्च को चला सकती है। इस स्टेज में मिनिमम 2 फ्लोज ऑफ इनकम आपके पास में होते हैं और लगभग 12 महीने के एक्सपेंसेस आपके पास में पड़े होते हैं, तो आप बहुत ही स्टेबल और सिक्योर और इंडिपेंडेंट इस स्टेज में महसूस करते हैं। तो मोस्टली जो लोअर लेवल का रिच क्लास है और जो हाई लेवल का अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो सब लोग इस इंडिपेंडेंस स्टेज के अंदर आते हैं। इसके बाद में आती है फ्रीडम। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये वो स्टेज है जिस स्टेज में एटलीस्ट 4 फ्लो ऑफ इनकम है आपके पास में, 2 साल से ज्यादा के एक्सपेंसेस हैं आपके पास में, और ये वो स्टेज है जिस स्टेज में आपने पैसिव इनकम से सिर्फ खर्चा ही नहीं, आप अपनी लग्जरी भी अफोर्ड कर सकते हैं। आप अपने हॉलीडेज, लग्जरी, बिजनेस क्लास, 5 स्टार, ये सभी चीजें अपनी पैसिव इनकम से कर सकते हैं। इतना आपने जुगाड़ यहाँ पे कर लिया है। और देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है व्हेन यू डिस्कनेक्ट योर इनकम विद टाइम एंड लोकेशन। जब आप अपनी इनकम को टाइम और लोकेशन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम।
तो अगर आप एक डॉक्टर हैं और एक क्लिनिक पे बैठते हैं और आपका पैसा कमाने के लिए रोज उस क्लिनिक पे बैठना जरूरी है आपका, तो आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं कहा जा सकता, अगर आप 1 करोड़ भी कमा रहे हैं तो भी। फाइनेंशियल फ्रीडम बाय डेफिनेशन व्हेन यू डिस्कनेक्ट योर इनकम विथ टाइम एंड लोकेशन, यानी कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कहीं होने की जरूरत नहीं है इनकम बनाने के लिए। क्लियर? तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ में तभी आ सकती है जब आप सिस्टम्स डेवलप करें, और जितने बढ़िया तरीके से आपके सिस्टम काम करेंगे उतना बढ़िया आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इनकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम टाइम एंड लोकेशन का मतलब देखें कि आज मैं इंडिया के बाहर, कभी दुबई में, कभी सिंगापुर में, अलग अलग देशों से लेक्चर्स लेता हूँ, राइट? मेरी मर्जी के समय पे लेता हूँ और मुझे किसी एक जगह पे होने की जरूरत नहीं है इनकम जनरेट करने के लिए। प्लस मेरे कई ऑटोमेटेड फनल्स चलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं जो ऑटोमेटिकली सेल करते हैं, पूरा ऑटोमेशन है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो फनल एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह चल रहे हैं। पीपल आर बाइंग माई कोर्सेज, इवन इफ आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, माई फनल इज जनरेटिंग मनी फॉर मी। That is called financial independence. Your income is not dependent on your time and location. क्लियर है? सिर्फ मेरे ऑटोमेशन से अगर मैं आपसे बात करूं, if I have the screenshot, I will show you. Let me tell you that just through my automation, how much I am able to do. Just a second. Okay, ये अप्रैल तक का है मेरा। अगर आप देखेंगे तो it's 3,05,82,000, यानी कि इस साल के पहले 4 महीने में इतना मेरा ऑटोमेशन से सेल हुआ है, जो कि इंस्टामो जो अकाउंट है मेरा, जो डायरेक्टली जो ऑनलाइन लोग पेमेंट करते हैं, ये वहां से आता है। ठीक है? जस्ट यूजिंग सोशल मीडिया, जस्ट यूजिंग ऑटोमेशन। ओके, इसको पॉजिटिव इंटेंशन में लीजिएगा, मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं छोड़ रहा हूं यहाँ पे। ठीक है? कि क्या पॉसिबल है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सो नहीं, क्योंकि अगर आपका सबकॉन्शियस बिलीफ खराब होते हैं तो कोई इंसान अगर अपना अचीवमेंट आपके साथ शेयर करें तो आपका पहला जो माइंडसेट में दिमाग में आता है वो पता है क्या आता है? शो ऑफ हो रहा है। दिस इटसेल्फ इज अ ब्लॉकेज। ठीक है? ये आना ही अपने आप में एक ब्लॉकेज की बात है। यू शुड बी इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल सक्सेस, यू शुड नॉट फील दैट द पर्सन इज शोइंग ऑफ। ओके, तो इंडिपेंडेंस स्टेज हो गई। इंडिपेंडेंस स्टेज के बाद में फ्रीडम हो गई, और फ्रीडम के बाद में देखिए दोस्तों आपकी टॉप आएगी, और टॉप स्टेज है जिसे हम कहते हैं अबंडेंस। नेक्स्ट स्टेज इज अबंडेंस स्टेज। अबंडेंस स्टेज वो स्टेज है जिस स्टेज पे यू आर एट द पिनेकल ऑफ योर मनी सक्सेस लेडर। ये वो है जहां पे आप एक 700-800 मिलियन डॉलर से लेके कई बिलियन की आपकी नेटवर्थ है। ये वो स्टेज है आपके आने वाली पीढ़ियां भी पैसा खर्चा नहीं कर सकती है। मिनिमम 6-7 फ्लो ऑफ इनकम है आपके, और इस स्टेज में आप सिर्फ अब अपने बिजनेस के लिए या खुद के लिए, परिवार के लिए ही नहीं सोच रहे होते, आप आने वाली जनरेशन के लिए सोचना चालू कर देते हैं। आप बड़े बड़े फाउंडेशन चलाना चालू कर देते हैं, और इवन आने वाली जनरेशन का, प्लेनेट का, बहुत बड़ी बड़ी चीजों में आपकी सोच चली जाती है। दिस इज कॉल्ड द अबंडेंस। ठीक है? इस स्टेज में तो गिने चुने लोग ही होते हैं, तो इसमें परसेंटेज भी हम नहीं लगा सकते, लेकिन आप ओवरऑल देख लें कि जो टॉप 3 हैं, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और अबंडेंस, इसके अंदर टोटल दुनिया की इंडिपेंडेंस में लगभग 15% लोग होते हैं, 4% टाइप होते हैं फ्रीडम के अंदर, और लगभग 1% करीब होते हैं जो अबंडेंस स्टेज में होते हैं। क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी? मुझे अब ऑनेस्टली बताएं चैट बॉक्स में दैट आप इस पिरामिड में, इस स्टेजेस में, वेयर आर यू राइट नाउ? आप कहां पे हैं? व्हाट इज योर स्टेज? फर्स्ट स्टेज, थर्ड। फर्स्ट मतलब धनंजय डिपेंडेंट, क्या आप किसी और पे निर्भर करते हैं? मे भी अपने माता पिता पे, आपकी खुद की कोई कमाई नहीं है। 5, 1, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, 3, 5, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1 is at 6, 2, 3, 3। धनंजय फर्स्ट पॉइंट ही तो बता रहा हूँ, डिपेंडेंट का मतलब किसी और पे आप डिपेंडेंट हो, इसमें समझने जैसा क्या है? यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने माता पिता पे डिपेंडेंट है ना, तो आपको डिपेंडेंट कहा जाएगा।
आप अगर बूढ़े हो चुके हैं, आपने इनफ सेविंग नहीं करी है, आपका खर्चा अब अपने बच्चों की कमाई पे चलेगा, तो भी आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आप देखते हैं, आप इवन चैट बॉक्स में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि 80% पीपल हैव रिटर्न बिलो 4। सो ये जो स्टेज होती है, इन स्टेजेस में आपकी जो फीलिंग रहती है फाइनेंशियली, आप एक स्ट्रगल की फीलिंग में रहते हैं। ठीक है, मतलब देयर इज अ वन टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस आपकी लाइफ का हिस्सा बना हुआ रहता है। क्लियर? और मैं आपको कह दूं, इनमें से किसी भी स्टेज पे ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना कमा रहे हैं। हो सकता है आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, फिर भी आप सोलवेंट ही हो। अगर आप 10 लाख कमाते हैं और 9.5 लाख खर्चा कर देते हैं, तो आप सोलवेंट ही हैं। और कई लोग तो आप देखते हैं 10 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से 10 करोड़ के लोन लिए हुए होते हैं, तो उन्हें भी सोलवेंट ही कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो टोटल 7 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज डिपेंडेंट, सेकंड इज सॉल्वेंट, थर्ड इज सिक्योर, और फोर्थ इज स्टेबल, फिफ्थ इंडिपेंडेंस, देन फ्रीडम एंड अबंडेंस। क्लियर है? एक बार दिखा देता हूं आपको, फटाफट से देख लीजिए। फर्स्ट डिपेंडेंट, किसी और पे निर्भर हो आप। सॉल्वेंट, जितनी कमाई उतना खर्चा। स्टेबल, थोड़ा सा ज्यादा। सिक्योरिटी, अब थोड़ा सा पैसिव इनकम भी आने लगी है, अब पैसिव इनकम से खर्चा चल जाता है, पैसिव इनकम से लग्जरी आप कर सकते हैं। और अबंडेंस, तो अबंडेंस है। अब आए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कितना रुपया महीना आप कमाने लगे तो आपको लगेगा दैट माय फाइनेंशियल लाइफ इज सॉर्टेड। फाइनेंशियल जिंदगी में आप कोई दिक्कत नहीं है, कितना पैसा आने लगे तो आपको ऐसा लगेगा। और जो आप बिलीव करते हो ट्रूली, और जो आप आने वाले साल 2 साल में अचीव भी करना चाहते हो, ऐसा लिखिएगा। रैंडम फिगर ना लिखिएगा, क्योंकि देखिए लिखने में कुछ नहीं जाएगा। लैपटॉप है आपके पास में, मोबाइल है, बस टाइप ही करना है। भास्कर, इन्फिनिट ना लिखें, ठीक है? इन्फिनिट आप ना तो दुकान में दे सकते हैं, ना बैंक में जमा करा सकते हैं। ठीक है, ना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फिनिट इज जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है, तो इन्फिनिट तो अभी भी है आपके पास। कीप सम स्पेसिफिक नंबर्स इन योर माइंड। ओके, आप देखें जो भी नंबर आप लिख रहे हैं, लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ये लिखने में यहाँ पे कुछ जाता नहीं है, आपको सिर्फ एक टाइप ही करना होता है और यहाँ पे आ जाता है चैट बॉक्स में। मुझे बताएं, क्या आपके एक्शंस, आपकी स्किल उस लेवल की है जिस लेवल पे ये कमाई की जाती है? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ लिख देने में कुछ नहीं लगता है, बहुत आसान है लिख देना। क्या आपके हैबिट, बिहेवियर्स, आप सुबह उठ करके लेकर रात को सोने तक जो काम कर रहे हैं, वो काम में आप जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो क्या इस लेवल का है कि जो आपको इतना पैसा कमा के देगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, 10 लाख रुपए महीना कमाने की एक अदा होती है। उस अदा से आप 10 लाख कमा सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ नहीं कमा सकते। 10 करोड़ की अलग अदाएं होती हैं। जिन अदाओं से आप 10 करोड़ कमाते हैं, उन अदाओं से आप 100 करोड़ नहीं कमा सकते। 100 करोड़ में अलग अदाएं लगती हैं। और जिनसे आप 100 करोड़ कमाते हैं, उन अदाओं से आप 1000 नहीं कमा सकते। यही कारण है कि हर करोड़ कमाने वाला 10 करोड़ पे नहीं पहुंचता, हर 10 करोड़ वाला 100 पे नहीं पहुंचता, हर 100 वाला 1000 पे नहीं पहुंचता, और हर 1000 वाला 10,000 पे नहीं पहुंचता, क्योंकि अलग अदाएं लगती हैं। तो ये जो भी फिगर आपने लिखा है, क्या वो अदाएं हैं आपके पास? उन अदाओं को हमें पकड़ना पड़ेगा। और ध्यान दें जरा, व्हेन इट कम्स टू वेल्थ बिल्डिंग, पैसे के साथ आप देखिए 4 काम ही कर सकते हैं। यू कैन ओनली डू 4 थिंग्स विथ मनी। यू कैन अर्न मनी, यू कैन स्पेंड मनी,
you can save money and you can invest money. Only 4 things can be done with money. पैसे को या तो कमाया जा सकता है, या सेव किया जा सकता है, या खर्च किया जा सकता है, या इन्वेस्ट किया जा सकता है. इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं आप पैसे से? सर डोनेशन दे दूंगा मैं, तो डोनेशन स्पेंडिंग में ही आएगी. ठीक है, तो अब देखें, अर्निंग मनी एंड बिल्डिंग वेल्थ, ये 2 अलग स्किल हैं. You might be good in earning money, okay, but it doesn't mean that you are good in building wealth as well. Okay, वेल्थ बिल्डिंग एक अलग स्किल है, पैसा कमाना एक अलग स्किल है. हो सकता है आप सेल में अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है, मे बी आप मार्केटिंग में, आपको एक ऐसी स्किल आती है जिससे आप पैसा ले आते हैं, लेकिन जो पैसा ले आते हैं वो पैसा निकल भी जाता है. यानी कि आपने उस पैसे को मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने उस वेल्थ को बिल्ड नहीं किया. तो हो सकता है कि जब से आपने कमाना शुरू किया तब से लेकर अभी तक आपने 10 करोड़ कमा लिए हो, लेकिन आपकी नेटवर्थ अभी भी 50 लाख की हो या 1 करोड़ की हो. तो अभी तक आपने जितना भी कमाया है, अगर उससे ज्यादा आपकी नेटवर्थ नहीं है, इसका मतलब है आपने वेल्थ बिल्डिंग नहीं करी है. यू जस्ट लॉस योर वेल्थ. आपने सिर्फ जो पैसा कमाया उसको गंवाया है बस. ठीक है, ये माइंडसेट रिलेटेड है, तो अभी नेटवर्थ कैलकुलेशन और उन सब पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग का गेम आपको मास्टर करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मास्टर करनी होंगी, जो मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं. थोड़ा फोकस दीजिएगा. देखें, देर आर 3 एलिमेंट्स. 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. जब भी आप वेल्थ बिल्डिंग को मास्टर करना चाहेंगे, आपको इन 3 एलिमेंट्स को मास्टर करना होगा. एलिमेंट नंबर 1 इज न्यूरोकेमिस्ट्री. आपको पैसे की न्यूरोकेमिस्ट्री को समझना पड़ेगा. सेकंड है आपके सबकॉन्शियस एसोसिएशन. सबकॉन्शियस एसोसिएशन का मतलब है योर रिलेशन विथ मनी. पैसे के साथ आप सबकॉन्शियसली कैसे जुड़े हुए हैं. एक सकारात्मक रिश्ता बना हुआ है आपका, पॉजिटिवली चार्ज रिलेशनशिप है, पॉजिटिवली चार्ज एसोसिएशंस हैं, या फिर नेगेटिवली चार्ज एसोसिएशंस हैं आपके. और थर्ड पार्ट आता है दोस्तों, और जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी. ओके, स्ट्रेटेजी और स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटी, ये सब चीजें. ठीक है, ये 3 फैक्टर हैं. लोगों को ज्यादातर पता क्या लगता है, लोगों को लगता है कि सर मेरे पास में ये नहीं है, सर वो इन्वेस्टमेंट कर दूं, स्टॉक में कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में ये चीज नहीं है सर, स्ट्रेटेजी नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है मेरे पास में, इस वजह से नहीं हो पा रहा है. बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास स्किल पड़ी है लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर पा रहे. तो आप ध्यान दें दोस्तों, ये जो पहले 2 फैक्टर हैं, these two factors contribute in 80% सक्सेस ऑफ योर वेल्थ बिल्डिंग. इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, माइंडसेट. माइंडसेट, या फिर यू कैन कॉल इट इनर गेम ऑफ मनी. पैसे का इनर गेम, आपका अंदरूनी गेम कैसा है पैसे को लेकर के, और 20% सक्सेस इस पे डिपेंड करती है. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. 20% है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है. आप 80 पे आउट हो जाएंगे, सेंचुरी नहीं डिक्लेयर होगी, हाफ सेंचुरी ही गिनी जाएगी. सेंचुरी तभी मानी जाएगी जब पूरा 100 होगा. ठीक है, तो ये 20% भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही है, मगर इस पे आपको ज्यादा पहले काम करने की जरूरत है. फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट योर माइंडसेट एंड देन यू हैव टू बिल्ड स्ट्रेटेजी. क्लियर है? नाउ एक एक करके आपको बताता हूं कि व्हाट डज इट इवन मीन. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कितने लोग इस बात में मानते हैं कि 80% माइंडसेट का रोल होता है, 20% ही स्किल और स्ट्रेटेजीज का होता है. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? अगर आप थोड़ा भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ सिस्टम, माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये आइडिया होगा. लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जहां पे माइंडसेट और स्ट्रेटेजी क्लियर कट एविडेंस हमें मिलता है कि माइंडसेट ही ज्यादा पावरफुल है. आप देखें जरा, अगर स्ट्रेटेजी से काम चलता तो आप और मैं एक रिच डैड पुअर डैड किताब खरीद लेते, उसमें से स्ट्रेटेजी जान लेते और सबके सब पैसा बना लेते.
यस और नो? काम बन जाता ना? ये 5 स्टेप दिए हुए, ये 7 स्टेप दिए हुए, जाके आप वो 7 स्टेप कर दीजिए, हो जाना चाहिए काम। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो नहीं है। स्ट्रेटेजी की कहाँ कमी है मुझे बताएं। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है मिलता है, आज IIM अहमदाबाद से लोग सपोज MBA करके निकले, आपको पता है 90% लोग जो IIM अहमदाबाद से MBA करके निकलते हैं वो जाके नौकरियां करते हैं, अपना बिजनेस नहीं खोलते। सोचिए MBA का मतलब क्या है। जिसने बिजनेस की मास्टरी करी है, मतलब आप सोचें, बिजनेस चलाने की जिसने मास्टरी करी है, वो इंसान इंडिया के या दुनिया के भी सबसे टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद खुद का बिजनेस खोलने के बजाय किसी और का बिजनेस, जिसने IIM अहमदाबाद से नहीं किया है, जिसने शायद पढ़ा भी नहीं है, उसके बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। यानी कि क्लियर कट पता चलता है, अगर आपका माइंडसेट है तो स्ट्रेटेजी वाले बंदे को आप हायर भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बिहाफ पे किसी माइंडसेट के लिए किसी और को नहीं रख सकते। माइंडसेट का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, माइंडसेट आपको खुद ही अपना बनाना पड़ेगा। इसका रीजन देखिए, क्या वो जो IIM अहमदाबाद से MBA करके निकला उसके पास में कोई स्ट्रेटेजी की कमी है? बिजनेस चलाने की कौन सी बात उसे नहीं आती? तो फिर वो क्यों नहीं कर पाता? वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि बचपन से उसकी कंडीशनिंग हुई है सिक्योर जॉब के लिए। उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो सिक्योरिटी की है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड में ही नहीं है कि वो रिस्क ले। स्ट्रेटेजी सब पता है उसको, लेकिन उसके माइंडसेट में वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, इस वजह से वो किसी और के बिजनेस को ग्रो करता है। और शायद बहुत देर ग्रो करने के बाद में शायद उसमें करेज आ जाए, कभी माइंडसेट बन जाए तो शायद अपना शुरू करेगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। और आज देखें, हम लोगों का तो माइंडसेट ऐसा है कि जब अखबारों में आता है कि जी सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के बन गए हैं, सुंदर पिचाई गूगल के बन गए हैं, और कोई ट्विटर का बन गया है, अभी रिसेंटली एक और कोई बड़ी कंपनी के अंदर इंडियन वहां पे स्टार्टअप में लग गए, इंडियन CEO बन गया है कोई, और कोई बड़ा स्टार्टअप में, और हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे कि यार हमारे इंडियन। लेकिन ये सेलिब्रेट करने के साथ साथ एक सोचने का विषय भी है कि जब इतने ब्रिलियंट माइंड जो बाहर की कंपनियों को इतना बड़ा कर सकते हैं, कभी इंडिया में इनको ऐसा एनवायरनमेंट क्यों नहीं मिला कि अपनी कंपनी बना के बड़ा कर सकते थे उससे? Why they were not given such environment in our country? Getting it? ठीक है, सी वी आर प्राउड ऑफ देम, बट ये एक मेरे ख्याल से एक सोचने का विषय है कि क्यों हमने उन्हें वहां पे इंडिया में रह करके इन्होंने किसी कंपनी को बना के उसको बड़ा क्यों नहीं किया, वो एनवायरनमेंट ये क्यों नहीं क्रिएट कर पाए? हमने शायद कहीं ना कहीं एज अ नेशन वी कुड नॉट गिव दैट एनवायरनमेंट, राइट? एंड स्टिल वी आर सेलिब्रेटिंग समवन गेटिंग गुड जॉब, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट। ठीक है, तो करें सेलिब्रेट, लेकिन एक सोचने का विषय भी है। और वहां पे अगर हम नहीं भी जाएं तो यहाँ पे मेन चीज है, क्लियरली एविडेंट है दैट स्ट्रेटेजी खरीदी जा सकती है, हायर किया जा सकता है स्ट्रेटेजी के लिए, बट माइंडसेट जो है वो आपकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग का नतीजा होता है। क्लियर है दोस्तों? तो हमें कहाँ काम करना है? हमें इस 80% पे, बहुत पहले आप 80% पे काम करें एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन 20%। फिर देखिएगा हार्मनी क्रिएट होगी, फ्लो बनेगा, अबेंडेंस क्रिएट होगी। और न्यूरोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है ये भी समझा दूं आपको, क्योंकि ये टर्म आपके लिए नया होगा और अभी तक आप किसी को भी इस पे बात करते हुए नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये मेरी अगली किताब में आने वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। अभी तक मैं टोटल 9 किताबें लिख चुका हूँ और 10वीं किताब मेरी काम चल रहा है जिसपे। तो न्यूरोकेमिस्ट्री देखिए क्या होती है। हम सबके अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, हमारे कुछ बिहेवियर्स के साथ में वो केमिकल एसोसिएटेड होते हैं। जो प्लेजेंट केमिकल है उन्हें कहते हैं डोज, DOSE, लिख लें इसको, डोज। डोज का मतलब है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। ये 4 प्लेजेंट हार्मोन्स हैं हमारे शरीर के अंदर, प्लेजेंट न्यूरोकेमिकल्स हैं। ये न्यूरोकेमिकल्स जब किसी भी बिहेवियर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो हम उन बिहेवियर्स को बार बार करना पसंद करते हैं। एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। जिन चीजों के साथ ये एसोसिएट हो जाए उन चीजों से हम भागने का प्रयास करते हैं।
ओके, तो अब देखें कि मनी के साथ में 4 बिहेवियर पॉसिबल हैं। अर्निंग का बिहेवियर, सेविंग का बिहेवियर, इन्वेस्टिंग के बिहेवियर्स एंड स्पेंडिंग के बिहेवियर। दीज 4 बिहेवियर्स आर अटैच्ड व्हेन इट कम्स टू मनी। ओके, सो अगर सपोज करें स्पेंडिंग के साथ में डोपामिन कनेक्ट हो गई, दैट व्हेनेवर यू स्पेंड समथिंग, इफ देयर इज अ स्पाइक ऑफ डोपामिन, तो डोपामिन जिस एक्टिविटी, जिस बिहेवियर के साथ में कनेक्ट हो जाती है, आप वो बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, उस बिहेवियर को आप बार बार करना चाहते हैं। इसलिए आप देखते हैं कई लोगों के लिए शॉपिंग इज ए थेरेपी। कई लोग शॉपिंग को एक थेरेपी की तरह यूज करते हैं। जब भी स्ट्रेस में है, परेशानी में है, या फिर पहली तारीख को जब तनख्वाह आती है, तुरंत कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और जैसे कुछ पैसा खर्च कर देते हैं या कुछ खरीद लेते हैं, somehow they feel good। क्लियर? और देयर इज अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो शॉपोहोलिक जिसे कहते हैं। कई लोग एडिक्ट बन जाते हैं इस चीज के, एंड वी कॉल देम शॉपोहोलिक। जैसे एल्कोहलिक होता है ना, वैसे शॉपोहोलिक भी होता है। ये वो लोग हैं जिनके क्रेडिट कार्ड के बिल ऊपर ही जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है, इन्हें डोपामिन मिलती है जब ये खर्चा करते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जिनके लिए शॉपिंग एक थेरेपी का काम करती है, और कुछ पैसा खर्च करने के बाद में अच्छी फीलिंग आती है, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है? कितने लोग हैं? गर्ल्स में ज्यादा होता है बॉयज के कंपैरिजन में, बट बॉयज में भी होता है, मगर फीमेल में ज्यादा होता है। जो सब में नहीं होगा, बट यस 60-70% में होता है। राइट? अब कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है, इनका स्पेंडिंग के साथ में कोर्टिसोल अटक जाता है। अब जिसका स्पेंडिंग के साथ कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन हो गया, ये वो लोग हैं जिनकी जेब में जो पैसा है वो जुपिटर से भी ज्यादा ग्रेविटी फील्ड रहती है, और जो पैसा अंदर चला गया आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो है, इनकी पॉकेट में ग्रेविटी इज मोर देन जुपिटर। पैसा चला जाएगा, आप बाहर कितना ही खींचने की कोशिश करो, निकलेगा नहीं इनसे। ये वो लोग हैं, जब आप खाना खाने गए हैं तो ये वो लोग हैं जिनका पर्स सबसे एंड में निकलेगा, या फिर निकलेगा ही नहीं, तू दे दे बेटा, अभी बाद में देता हूं मैं, ठीक है। ये वो वाले दोस्त हैं आपके जो हॉस्टल से आपके साथ होंगे। कल मैं मनी पर्सनालिटीज की बात करूंगा, तो इस पे थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। अर्निंग, पूजा देखो, तुमने स्पेंडिंग भी याद रखा, सेविंग याद रखा, इन्वेस्टिंग याद रखा, अर्निंग ही भूल गई जो सबसे पहला है, वरना बाकी के 4 हो ना पाएंगे। ठीक है, तो तो केमिकल्स हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ठीक है। तो मनी बिहेवियर्स और ये केमिस्ट्री आपस में कनेक्ट हो जाती है, फिर ये केमिकल आपके मनी बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और फिर आप चाहते हुए भी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो बिग बाजार या किसी शॉपिंग मॉल में जब कुछ खरीदने जाते हैं, तो 3-4 चीजें लिख के जाते हैं, ये 3-4 चीजें खरीदनी है, लेकिन जब लौटते हैं तो हमेशा उससे ज्यादा ही होती हैं आपके पास में। ये कैसे होता है? कौन है जो कंट्रोल कर रहा है? आप तो डिसाइड करके गए थे ना कि इतना ही खर्चा करूंगा, आप तो डिसाइड करके गए थे ना कि इतना ही लेना है, तो फिर क्या चीज कंट्रोल करी कि आप ज्यादा लेके आ गए? ये कितनों के साथ में होता है? शॉपिंग में जाएंगे, इतना बजट लेके जाएंगे, आएंगे तो ज्यादा ही, कम कभी नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना, ज्यादा ही लेकर के आते हैं आप। यानी कि somebody is able to control your behavior। वहां पे there is something happening in the malls, there is something happening in the big bazaar that is controlling, that is able to control your money behavior। क्लियर? तो आप देखें, ये जो न्यूरोकेमिस्ट्री है आपकी, ये न्यूरोकेमिस्ट्री, ग्रीड क्या है? एंटीसिपेशन ऑफ डोपामिन। ग्रीड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ न्यूरोकेमिस्ट्री। ये जो स्टॉक में, इन सब में, जुए में लोग इतना इतना पैसा खोते हैं, इट इज द ग्रीड। जब उनको इमोशन, कोई इमोशन जब आपके डिसीजन को ड्राइव करने लग जाता है, वहां पे गड़बड़ शुरू होती है आपके जीवन में। क्लियर?
देन सबकॉन्शियस एसोसिएशन, सेकेंड एलिमेंट देखें, फर्स्ट था हमारा न्यूरोकेमिस्ट्री, सेकेंड इज सबकॉन्शियस एसोसिएशंस। अब सबकॉन्शियस एसोसिएशन का मतलब समझें कि क्या है, कि बचपन से लेकर के अभी तक दोस्तों आपको पैसे के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, आपके खुद के अनुभव भी हैं उसको लेकर के। इन सब चीजों के आधार पे सबकॉन्शियस लेवल पे मनी के साथ आपका रिश्ता बन चुका है, आपकी कुछ धारणाएं बन चुकी हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं पैसे को लेके। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाना आसान नहीं है, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, पैसा हाथ का मेल है, अरे पैसा वैसा क्या होता है, प्यार होना चाहिए जीवन में, पैसे से क्या खुशी खरीद सकते हो, अमीर लोग बुरे होते हैं। मोहल्ले में कोई एकदम से अमीर बन जाए तो घर में एक ही बात चलती है, जरूर 2 नंबर का काम करता है, इतना जल्दी पैसा कैसे आ गया इसके पास में। तो आपकी बचपन से पैसे को लेकर के कंडीशनिंग हुई है, और उस कंडीशनिंग में आपकी सबकॉन्शियस टेंडेंसीज बना दी हैं, सबकॉन्शियस इंक्लिनेशंस बना दिए हैं, और सबकॉन्शियस एसोसिएशंस बना दिए हैं। और ये एसोसिएशंस अब आपके पैसे से रिलेटेड डिसीजंस को, चॉइसेस को, इन सभी को, बिहेवियर्स को, एक्शंस को, इन सभी को ये कंट्रोल करते हैं। आपको पता है, एक रिसर्च ये बताती है कि अगर इस पूरी दुनिया का पैसा लेकर के इक्वली सब लोगों में बांट दिया जाए, तो ये कहते हैं कि 3 साल में वो पैसा वापस वहीं पहुंच जाएगा जिसके पास पहले था। बिकॉज मनी इज नॉट ए स्टेट ऑफ योर बैंक बैलेंस, इट इज अ स्टेट ऑफ योर साइकोलॉजी। ये आपके बैंक बैलेंस की स्थिति नहीं है, ये आपके मन की स्थिति है। तो जो लोग अमीर हैं वो सबकॉन्शियसली पैसे के बारे में एक तरीके से सोचते हैं, जिनकी वो सोच उन्हें वहां तक पहुंचा रही है, ठीक है। और जो लोग अटके में हैं पैसे को लेकर के, वो एक तरीके से एक सबकॉन्शियसली अटैच्ड हैं, एक सबकॉन्शियस रिलेशनशिप है उनका पैसे के बारे में। मैं आज 14 ऐसे बिलीफ, ऐसे साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस की मैं बात करूंगा आपसे, 14, जो हमारी इंडियन कल्चर में सबसे ज्यादा हैं, और स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास में तो सबसे ज्यादा है। कई ऐसे बिलीफ हैं। एक सर्वे कहता है कि 56.9% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आप कितनी कमाई करते हैं लोगों को ना बताएं, अगर बता दिया तो नजर लग जाएगी। यू शुड नॉट टॉक अबाउट मनी, इट्स अ बैड थिंग। यस और नो? तो देखें, ये आपकी साइकोलॉजी की स्थिति है कि आपके सबकॉन्शियस एसोसिएशन, आपका रिलेशनशिप सबकॉन्शियस लेवल पे कैसा बना हुआ है। और आप देखें, आप कॉन्शियसली कुछ भी चाहते हो, कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मुझे अमीर बनाना है, ये जो फिगर लिखा ना आपने, आपके कॉन्शियस माइंड ने लिखा है। आपकी रियलिटी मगर कॉन्शियस माइंड तय नहीं करता, आपकी रियलिटी सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट होती है, कॉन्शियस से क्रिएट नहीं होती है। तो रिसर्च ये बताते हैं कि आपके लाइफ डिसीजन पे 5% कंट्रोल कॉन्शियस का है, 95% सबकॉन्शियस का है। तो सिर्फ आप वो जो 5% कंट्रोल है उसी में कह रहे हैं मुझे अमीर बनना है, पैसा कमाना है, मेरा बचता नहीं है पैसा, ये सब 5% में चल रहा है बस। आपका 95% तो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, आपकी आइडेंटिटी, इन सब पे मैं बहुत गहराई में अगले 2 दिन में आपसे बात करूंगा, पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे। आज जस्ट अभी एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। There is a reason why rich people become rich. Okay, and it has nothing to do with कि अभी आपके पास में कितना पैसा है। It's all about 80% mindset, ठीक है। और फिर आती है स्ट्रेटेजी। फिर स्ट्रेटेजी भी है कि आपके पास में पैसे को मैनेज करने की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, आप कितने अकाउंट्स खोल के रखते हैं, किस अकाउंट में क्या करना है, किस तरीके से अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट करते हैं, कितना आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, कितना % आप इन्वेस्ट करते हैं, जिन इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आते हैं उन रिटर्न में से कितना रखते हैं, कितना वापस री इन्वेस्ट करते हैं, कितने पेशेंस से आप चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, आपकी रिसर्च क्या है। फिर मगर ये गेम 20% है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि
मैंने आपसे पूछा, आपने एक फिगर दिया कि इतना मैं कमाना चाहता हूं, मुझे आप बताएंगे कि इतना आप क्यों कमाना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू अर्न दिस मच, क्या जरूरत आन पड़ी है ऐसी? जीवन चल तो रहा है, आप में से मैक्सिमम लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो 25 साल से 30 साल से ऊपर दिख रहे हैं मुझे, और आपके जीवन सेटल चल तो रहा है, तो नए पंगे क्यों लेने हैं? क्यों अब नए पंगे लेना चाहते हो? ग्रोथ। ये दिल मांगे मोर, थोड़ा और, थोड़ा और। अब देखें, कुछ सबकॉन्शियस शिफ्ट आप लोग करें, जितने भी लोग, ये जो मैं आज आपको बताऊंगा कि लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, व्हाई दे वांट टू अर्न, लेकिन मैं आपसे एक चीज में शिफ्ट चाहूंगा कि दो शिफ्ट आप करें अभी अपनी सोचने के तरीके में। फर्स्ट, आप कभी भी ग्रीड ड्रिवन होकर के पैसा ना कमाएं, यू शुड बी मिशन ड्रिवन। पैसा कमाने के दो इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, आपके अंदर से जो चीज आपको फायर कर रही है, जो फ्यूल कर रही है कि मैं और काम करूं और पैसा कमाऊं। अगर आपकी ग्रीड आपको फ्यूल कर रही है, ऐसा पैसा अनहैप्पी मनी होती है, और ये बहुत ही टेम्पररी आएगी और ये बहुत कुछ आपसे लेके चली जाएगी। ओके। दूसरा होता है जब आपका मिशन आपको ड्राइव कर रहा है, कोई ग्रीड आपको ड्राइव नहीं कर रही, देयर इज अ मिशन ड्राइविंग यू। वॉल्ट डिज्नी एक बात कहते थे कि आई वॉन्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी सो दैट आई कैन मेक ब्यूटिफुल मूवीज। तो इसे कहते हैं कि अपनी एंड वैल्यू से पैसे को कनेक्ट करें, कनेक्ट योर मनी विद द एंड वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी ग्रीड को कारण ना बनने दें, अपने मिशन को कारण बनाएं। हैव सम मिशन इन योर लाइफ, हैव सम पर्पस इन योर लाइफ, एंड कनेक्ट योर पर्पस विथ मनी। पैसे के साथ पर्पस को कनेक्ट कर दें। जैसे मेरा पर्पस है कि 100 मिलियन लोग मुझे ऐसे क्रिएट करने हैं जिनको अपना पर्पस पता हो, जो फुलफिलमेंट से जीते हों, जिनको अपनी मेंटल इमोशनल मास्टरी है, और एक बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस के साथ में अपने जीवन को जिएं और अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, पॉजिटिविटी को रेडिएट करें। अब 100 मिलियन लोग तो बहुत हो जाते हैं, इन लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत सारा ब्रांडिंग लगेगा, बहुत सारा मार्केटिंग लगेगा, बहुत सारा प्रमोशन लगेगा, बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। मेरी खुद की जरूरतें लिमिटेड हैं, लेकिन मुझे अपने इस मिशन को पूरा करना है, तो आई हैव टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। क्लियर है? सो आप अपने पैसे को किसी मिशन के साथ कनेक्ट करें। सिर्फ अपने घर के साथ में, अपने बंगले के साथ में, ईएमआई के साथ में, उधार के साथ में, इनसे कनेक्ट करके ना रखें। ये बहुत छोटे कारण है और कमजोर कारण है। कुछ बिगर, अपने से ऊपर कुछ कारण दीजिए आपके सबकॉन्शियस को, तो आपका सबकॉन्शियस ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। नंबर वन। सेकंड चीज देखें, आपका सबकॉन्शियस मीन वैल्यू के साथ में कनेक्ट नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस एंड वैल्यूज के साथ में कनेक्ट होता है। कोई बताएगा मुझे मीन वैल्यू और एंड वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? मीन वैल्यू एंड एंड वैल्यू? सेल्फ सेंटर। देखें, ध्यान दें, मीन वैल्यू होती है मीडियम वैल्यूज, ठीक है, जिस वैल्यू को हम एज ए मीडियम यूज करते हैं कहीं और पहुंचने के लिए, स्टेपिंग स्टोन होती है। ठीक है, जैसे आप छत पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप लिफ्ट को मीडियम यूज करते हैं छत पे पहुंचने के लिए, राइट? या सीढ़ी को आप एज ए मीडियम यूज करते हैं। आप छत पे पहुंचना चाहते हैं, आप सीढ़ी तो नहीं चाहते जिंदगी में। तो हमेशा ध्यान रखें, आपका आपका सबकॉन्शियस एंड वैल्यूज की टर्म्स में ज्यादा कनेक्ट करता है मीन वैल्यू के बजाय, लेकिन हम लोग प्रोग्राम है मीन वैल्यू के लिए। जैसे घर, घर क्या है? मीन वैल्यू है। गाड़ी मीन वैल्यू है। किस इंसान को गाड़ी चाहिए? किसी इंसान को गाड़ी नहीं चाहिए। ह्यूमन ब्रेन गाड़ियां पाने के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन प्रोग्राम्ड है स्टेटस दिखाने के लिए, सोशल हायरार्की में अपने आप को ऊपर रखने के लिए। क्योंकि ये चिंपैंजी साइकोलॉजी होती है कि जब भी
कोई स्पीशी ग्रुप में रहती है तो इंसान उस ग्रुप में हायर हायरार्की में जाना चाहता है, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट की हायरार्की हो, चाहे फैमिली की हायरार्की हो, दोस्तों की हायरार्की हो। वहां पे कॉर्पोरेट में वेल डिफाइंड हायरार्की होती है, वेल डिफाइंड पोजीशन होती है, लेकिन दोस्तों में ग्रुप में सबकॉन्शियस हायरार्की होती है। आप अगर 5 दोस्तों का ग्रुप है तो पांचों के पांचों सेम लेवल पे नहीं होते हैं, पांचों की एक सबकॉन्शियस हायरार्की है कि इसके ऊपर इतना मजाक किया जा सकता है, इस पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये लीड करेगा, ये लीड नहीं करेगा, ये ज्यादा डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, ये नहीं करेगा। किसी ने पोजीशन नहीं दी है, लेकिन अनसेड अनडिफाइंड हायरार्की है। तो ह्यूमन बीइंग्स को कार नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। आपका बड़ा बंगला, आप अपनी जिस कम्युनिटी में हैं, आप वहां बताना चाहते हैं कि यू आर सक्सेसफुल एंड यू आर अ हाई स्टेटस पर्सन। तो आपकी बड़ी कार, आपको BMW नहीं चाहिए, आपको मर्सिडीज नहीं चाहिए। यू वांट टू शो दिस पीपल द मेजरमेंट ऑफ योर सक्सेस सो दैट इट कैन इंक्रीज योर लेवल ऑफ स्टेटस in the minds of people. You want to control your perception in their mind. आप लोगों के दिमाग में आपका क्या परसेप्शन है, you want to control that. ये गहरा है, लेकिन कितने लोग समझ पा रहे हैं? You want to control how people perceive you. लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, you want to control that. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? मेकअप लगाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, स्टेटस बनाते हैं। इट्स नॉट जस्ट शो ऑफ। देखिए, सिर्फ शो ऑफ नहीं है ये बहुत जरूरी नहीं कि हर इंसान सबको बता ही रहा हो, लेकिन ये डीपर सबकॉन्शियस नीड है आपकी। शो ऑफ का मतलब हुआ कि वो जाके सबको बता भी रहा है, लेकिन कई बार आप नहीं बताएंगे, आप बस खरीद लेंगे और अपने आप लोगों को पता चल रहा है। So there is a deeper psychological need to have a higher status in the society. Getting it? कुछ लोग कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेफ है। तो इनकी एंड वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू इनकी भी कार है, लेकिन इनको स्टेटस से मतलब नहीं है। ये वोल्वो की गाड़ी खरीद रहा है क्योंकि उस गाड़ी में कोई डेथ नहीं हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर मेरे बच्चे और मैं इसमें घूमूंगा तो मैं सिक्योर रहूंगा। सो देयर नीड इज सिक्योरिटी। सो वन पर्सन, इसका कार की जरूरत नहीं है, देयर इज अ नीड फॉर सिक्योरिटी। कार की जरूरत नहीं है, देयर इज अ नीड फॉर स्टेटस। कार की जरूरत नहीं है, देयर इज अ नीड फॉर कंफर्ट। कोई किस लिए खरीद रहा है? ताकि उसके अंदर वो टीवी भी देख सके, फोन भी कर सके, लेट भी सके, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी है उसमें, उसमें झटके भी नहीं आते हो, ठीक है, उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटी बढ़िया है। तो वो किस लिए खरीद रहा है? कंफर्ट। सो एंड गोल क्या है? कंफर्ट है। वो अपनी ट्रेवलिंग को कंफर्टेबल करना चाहता है, दैट इज द एंड गोल। तो जरूरी नहीं है सबका स्टेटस होगा। क्लियर? तो गुची का बैग इज नॉट द एंड वैल्यू, गुची का बैग इज द मीन वैल्यू, एंड वैल्यू इज द स्टेटस, एंड वैल्यू इज द अटेंशन, एंड वैल्यू इज द वैलिडेशन, दैट you are able to get validation from people that yes, I am successful. कितनों को ये क्लियर है? तो देखें कि एंड वैल्यू और मीन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आप अहमदाबाद से पुणे एक ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, पुणे इज द एंड वैल्यू, और जिस ट्रेन की बोगी में आप बैठे हैं यह है मीन वैल्यू। मुझे बताएं, अगर आप मीन वैल्यू से ही अटैच हो जाएंगे, अगर आप बोगी से अटैच हो जाएंगे तो पुणे निकल जाएगा, आप पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, और जिंदगी भर निकलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, मीन वैल्यू में ही फंस जाएंगे, उस बोगी में ही फंस जाएंगे। तो आज क्लियर कीजिएगा, अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचना बंद कीजिए। पीपल हु थिंक अबाउट मनी दे नेवर अर्न इट। जितने भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, उन्होंने पैसे के बारे में नहीं सोचा है, उन्होंने एंड आउटकम के बारे में सोचा है, वही लोग पैसा कमा पाए हैं। और जो पैसे के बारे में स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर द वन हु आर थिंकिंग अबाउट मनी। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो मैं गांव के परिवार से आता हूं, देखिए रीच मालिया अजमेर के पास में एक छोटा सा गांव है। आप अगर जोश टॉक्स देखते हैं, जिन्होंने मुझे सुना है उनको तो स्टोरी पता होगी। तो मैं वहां से आता हूं, बिल्कुल गांव के खेती बाड़ी के परिवारों से आता हूं। आज मेरी 3 कंपनियां हैं, तीनों मल्टी मिलियन में हैं। जो एक गुनीगुरु जिसके माध्यम से आज यहाँ पे हैं, इसका वैल्यूएशन 140 CR का है। मोदी जी ने इसे अप्रिशिएट किया और लॉन्च किया है। तो मैंने अपने इस 13 साल में, 19 साल की उम्र में मैंने शुरू किया। इनफैक्ट मैं 8वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर चुका था। मैं 8 से ही पढ़ाई कर रहा था, बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशंस मुझे नीड थी। तो मैं 8वीं से इंडिपेंडेंट हूँ। उसके 8वीं में मैं इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद में कभी कुछ पेरेंट्स के ऊपर कोई भी बोझ नहीं दिया। 8वीं क्लास से मैं इंडिपेंडेंट हो गया था।
तो मैंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज पूरा, क्योंकि एक पुअर क्लास में पैसे को लेकर के आपको कुछ बातें सिखाई जाती हैं जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ी रहती हैं, जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। तो इनिशियली में मेरे प्रोग्राम्स में जब शुरू किया था, मैं कॉलेज में बुलाते, मुझे फ्री में बुला लेते, पैसे नहीं देते, कभी कहते बाद में दे देंगे, और मुझसे मांगे नहीं जाते। एक शाइनेस थी पैसे मांगने को लेकर के। ऐसा लगता था कि पैसे के बारे में बात करना, एक मैं ग्रीडी लगूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा, मैं तो स्पिरिचुअल नहीं लगूंगा। मैं शुरू से आध्यात्मिकता की तरफ रहा हूं, तो आई विल नॉट बी, हाउ कैन आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, हाउ कैन आई टॉक अबाउट मनी। तो ऐसे बहुत सारे डीपर सबकॉन्शियस बिलीव्स लेकर के बैठा हुआ था, जो कि बहुत ब्लॉकेज, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के समय में, जब जैसे जैसे मैं अपने मेंटोर से सीखता गया, चीजों से सीखता गया, पढ़ता गया, तब पता चला कि कैसे आपको अपने आप को उस प्रोग्रामिंग से बाहर लाना पड़ता है, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये 2 शिफ्ट आप पैसे को लेकर के करें, यानी कि don't think about money, just think about the end values that you want to create for yourself or for the people around you. Done? और कुछ रीजन अगर मैं आपको बता दूं कि लोग पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, तो आप देखें जरा, why people want to earn money, there are some psychological reason. सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बहुत से लोगों के लिए पैसा क्या देता है, उनको और उनके परिवार को सिक्योर करता है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करता है। देखिए, देयर इज अ साइकोलॉजिकल नीड टू फील सेफ एंड सिक्योर, एंड आज हमारा सर्वाइवल सिक्योरिटी पे बहुत डिपेंड करता है। परिवार की जो बॉन्डिंग है वो भी इस पे बहुत डिपेंड करती है। टू फील पावरफुल, कई लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि उन्हें लगता है कि बिलीफ है उनका कि पावर आती है इससे, मेरे पास पैसा होगा तो मेरे पास में पावर आएगी। कुछ लोग स्टेटस है, क्योंकि देखिए आप कितना सक्सेसफुल हैं इसका मेजरमेंट आप लोगों को देंगे कैसे? हाउ यू विल टेल पीपल दैट यू आर सक्सेसफुल? या तो आपके एक्शन में दिख जाए, अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो आपको किसी ना किसी तरीके से उन्हें मेजरमेंट देना पड़ता है, और वो मेजरमेंट मटेरियल चीजों से आता है। तो कई लोग फॉर द स्टेटस, कुछ लोग फैमिली को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर, उन्हें विदेशों में पढ़ाई करा सकें, उनका फ्यूचर बढ़िया कर सकें, इसलिए वो कमाना चाहते हैं। कुछ लोग हाई लेवल फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी में रहना चाहते हैं कि मैं भी सेलिब्रिटीज के साथ में उठूं बैठूं, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होना चाहिए, हायर पावरफुल लोगों के साथ में हो, तो उसके लिए तब होगा जब पैसा। कुछ लोग एक हेल्थी एनवायरनमेंट अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं, कुछ लोग वर्क के लिए, कि मैं भी अभी जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो उनका एक रीजन है। कुछ लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और कुछ लोग आजादी क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में एक फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे वांट टू अर्न मनी। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट व्हाट इज योर रीजन व्हाई यू वांट टू अर्न दिस मच मनी। ये जो भी लिखा आपने, आपका क्या कारण है, आप क्या खोज रहे हैं? वर्क, फ्रीडम, इम्पैक्ट एंड फैमिली, किड्स एंड फैमिली, एक ही बात होगी, किड्स फैमिली, यस। टू हेल्प द नीडी, यानी इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन हो गया। कंफर्टेबल लाइफ हो गया, विदाउट एनी रिग्रेट, कि आप कंफर्टेबल, इंसान बिजनेस क्लास में क्यों ट्रेवल करना चाहता है, ज्यादा कंफर्टेबल है, राइट? फैमिली, पर्सनल ग्रोथ, स्टेटस, फ्रीडम, मिशन, फ्रीडम, इम्पैक्ट, सपोर्ट सोसाइटी, इम्पैक्ट, लग्जरी एंड चार्म विल बी इन कंफर्ट, कंफर्ट एंड ग्रोथ में आएगा वो। फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ, मिशन, एजुकेशन, इम्पैक्ट, कुछ नहीं करना चाहते, जस्ट नॉलेज टू यूज मनी एफिशिएंटली, आई डोंट नो ये क्या है। इम्पैक्ट इन सोसाइटी, फैमिली एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, जिनको ये नहीं पता ना वो क्यों करना चाहते हैं, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताइएगा। आपका सबकॉन्शियस ऐसे ही किसी बिहेवियर को नहीं पकड़ता है, यानी कि आपने गहराई में जाकर के अपनी डिजायर को खोला नहीं है। any desire that is there inside you, you have to first connect with it, तो go inside, move inside, spend time and just open it up। उस लिफाफे को बंद ना रखें, आपकी डिजायर का लिफाफा आपने बंद रखा है, बस उसको खोल करके देखें कि अंदर क्या मैसेज छुपा हुआ है। that will unlock your end values, वहां से आपकी end values unlock होंगी। ठीक है, अगेन देखिए प्रदीप जी, बिल्डिंग अ बिग फैक्ट्री इज मीन वैल्यू, बड़ी फैक्ट्री एक मीन वैल्यू है, उसके भी पीछे कोई वैल्यू छुपी हुई है, दीज आर कॉल्ड हिडन वैल्यूज। ये हिडन एंड वैल्यूज क्या होती हैं? हिडन वैल्यूज होते हैं, सेकेंडरी गेन होते हैं, प्राइमरी जो सामने दिख रहा है, सेकेंडरी जो उसके पीछे है।
डन? यहां तक सब लोग अगर सेम पेज पे हैं तो प्लीज टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स if you're on same page with me so that we can move ahead. Everybody same page? Good. तो अपना स्पाइन को थोड़ा सा मूव करें अभी. Just move your spine a bit, have some water, hydrate yourself and reset your focus before we move forward. Ideally, every 45 minutes, you should adjust the position of your spine. देखिए, इंसानों को पैर मिले हैं, पैर. हमको जड़ें नहीं है. We don't have roots, we have legs. What does it mean? It means we are meant to move. We are not meant to be a potato couch जो एक जगह पे बैठा रहता है. ठीक है, इस चीज के लिए हम नहीं बने हैं. और आप आयरनी देखिए, व्यंग देखिए आप कैसा है कि आपका बॉडी सबसे बेस्ट तब काम करता है जब वो मूवमेंट में रहे, और आपका माइंड सबसे बेस्ट तब काम करता है जब वो स्टिल रहे.